have free speech. I will stare at this camera for a while. This is the question that we are asking today. This is a small question which has some very complicated answers. Are you allowed to say what you want without restrictions? Should the government be allowed to control what you say? These are all questions that have been asked for a while now, for centuries, I would say, and the definitions keep evolving and changing. But if there is anyone who is sort of testing the limits of free speech, are the two people on this panel today. One, our main guest. Hello, Manjul. Hi. Hi. Hi, Meena. Thanks for having me. Yeah. Manjul is a cartoonist. You must have seen his work. He makes fun of Modi ji a lot. नहीं अभी तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है. I doubt that anybody can draw cartoons on Modi. That's it. That's our episode. And the other guest who we have is Shad. Hello, Shad. Hello, Shad hello. is a comedian who is also testing the limits of free speech on stage. Yeah, it's a little safer on stage than what Sir is doing. Why is it safer? Because there are only like 50 people in the audience. It's not going into like a publication where millions of people are reading it. So you can get away with a lot of things. But suppose somebody records it and releases it on like YouTube or Facebook or on social media platform. वो risk है, but when it's like 600 rupees a ticket, वो लोग नहीं करते. That clientele is usually on our side only. So, Shad is our union leader of spectators, okay, Manjul? So, this is a term that we have given to the person who does not know who you are or what the topic is. The idea here is that he's the human form of a human YouTube comment. So basically he'll interrupt us, he will ask his own questions, etc. because he had no idea what this topic is. I come prepared. So that is the format of this podcast. So I'm totally unprepared. You're totally unprepared. I'm caught off guard. That's right. So we have two union leader of spectators. but the reason why I got you, Manjul, is because मुझे ना ये topic काफी time से करना था free speech पे कि what is free speech, what are the limits of free speech, what are reasonable restrictions, etc. And the usual suspect came to my mind, suspects, which is journalists and of course Abhinandan Sekhri and all the people that I've worked with. But then I was like, no, this is a very different sort of a thing, and I want answers from Manjul. Because you're a cartoonist, and that's a very different form of expression, but it is a form of expression. So how do you see free speech? What is free speech according to you? See, if you think कि free speech का मतलब ये है कि आप कभी कुछ भी कह सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि free speech फिर ना कभी थी और ना कभी होगी. ठीक है, आप चाहें तो इसको कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हैं. Just try to test it within your family. Try to say like anything to your father or your mother. तो immediately उसके repercussion आपको दिखाई देंगे. ठीक है, तो फ्री स्पीच का मतलब ये है कि आप अगर मतलब जो मेरे लिए है वो ये है कि अगर आप सपोज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जिसमें तमाम तरह के लोग हैं और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, उसमें तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो उस कंट्री को चलाते हैं. और वो लोग जो उस कंट्री को चलाने में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको ये लगता है कि उस नियमों के, उन कानूनों के, उन थोस के ख़िलाफ़ है जिस पे कंट्री चल रहा है या चलना चाहिए, एंड यू ट्राई टू पॉइंट इट आउट इन योर ओन वे, समटाइम्स लेस्ड विद ह्यूमर, समटाइम्स विदाउट ह्यूमर. तो वो हर बार अपनी अलग टेक्निक, तो वो काम करने की आपको आज़ादी होनी चाहिए. वो एक्सप्रेस करने की आपको आज़ादी होनी चाहिए. उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप उस तरह का कुछ करते हैं तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल शांत रहेगी, लेकिन सडनली ये होगा कि एक दिन आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आपको कहने दिया गया और
आपकी नौकरी चली गई, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मतलब आपको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कार्टूनिस्ट को कोई अलग से प्रोटेक्शन नहीं देता है, ना वो जर्नलिस्ट को अलग से कोई प्रोटेक्शन देता है। वो जो सबकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हमारी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ तो मैं उसको गला पकड़ के ये भी कहूँ कि नहीं आप सुनिए ही सुनिए। दैट्स ट्रू, है ना। तो मैं कह रहा हूँ, वो नहीं सुनना चाहता है वो ना सुने, तो आई एम मेकिंग माई पॉइंट। तो वो थिंग्स एंड देयर। तो जो लाइक माइंडेड पीपल हैं जिनको ये लगता है मैं सही कह रहा हूँ, वो ठीक है उसको। पर अगर आप उसको कर्टेल करने के लिए, ये जो मैंने एक चीज़ बताई कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, ये थोड़ी बड़ी बात है। पर और भी तमाम सारे टूल्स हैं जिनसे आप उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर सकते हो। जैसे 100 लोग आ जाएंगे जो आपको कुछ नहीं गाली देने लगेंगे, राइट। हाँ, तो ये भी आजकल एक बहुत पॉपुलर टूल है कि आप कोई कुछ कहना चाहता है तो उसको आप, हाँ, हालांकि आप उसके अगेंस्ट, आपके पास ये रास्ता है कि आप वो खिड़कियां बंद करो जिससे वो बोल रहे हैं, उनको ब्लॉक करो। लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। या तो आप ये करो कि आप किसी को हायर करो जो आपके साथ बैठ के केवल यही करता रहता है, ठीक है। तो पर मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ शायद मतलब धीरे धीरे इवॉल्व होगा, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर कि फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी, कैसी भी बात कभी भी कहीं पे भी कह दो। कुछ पर्पस होना चाहिए, उसको मीनिंगफुल होनी चाहिए। ट्रू। एंड शाद, डू यू थिंक यू हैव फ्री स्पीच? I think you can say whatever you want, like sir said, till nobody is listening. तो कुछ भी बोल सकते हो, like कमरे में वगैरह बैठ के। Like if you have like 5 followers on Twitter, तो फिर तो आप कुछ भी ट्वीट कर दो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। But I don't know if I have free speech in terms of, see, hate तो आता ही है, which I'm okay with, कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरे को फिर गालियाँ आ रही हैं, that I'm okay with, ठीक है, वो गालियाँ ही तो दे रहे हैं at the end of the day. But like अगर ऐसे you stop getting work and stuff that I've not experienced yet, तो till what all I have said till now, तो it's fine only. It's fine. But like, are you do you like censor yourself कि कुछ बोलना है but बोल नहीं सकते? Yeah, I censor myself quite a bit because I'm just, मतलब मैं हूँ भी paranoid, and the environment is also such that it makes you more कि if you're just Muslim also, so it just becomes a little trickier कि they come at you for the smallest of things. Do you censor yourself? See, all the time. All the time. ये मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि आपके मन में जो the first thing you censor about, like first idea which comes to your mind, तो आप उसको सबसे पहले इस पे सेंसर करते हो, यार ये किसी ने अभी हाल फिलहाल बनाया तो नहीं है, या That's true. है ना। तो लो हैंगिंग फ्रूट। हाँ, तो ये भी ऐसा नहीं है, ये भी एक किस्म की सेंसरशिप है। श्योर। तो आप, हाँ, कि आप पहले ये सोचते हो कि अरे किसी और आर्टिस्ट ने तो नहीं कर दिया, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि बिकॉज ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन इतने सारे सोर्सेस से आ रही है कि कई बार ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो नियरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा जगहों पे इतने सारे लोग इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि कई बार ये होता है कि फिर भी आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप इस तरह की कोई बात या इस ढंग से कोई बात ना कहें जो पहले कही जा चुकी है, खासतौर से डेलिबरेटली ना कहें। तो वो भी एक इनकी सेंसरशिप है, अगर आप सेंसरशिप के टर्म में देखो। फिर उसके बाद आप ये भी देखते हो कि जो लीगल एंगल है वो, है ना। फिर आप डिसेंसी लेवल पे भी देखते हो, है ना। आप कुछ भी इंडिसेंट नहीं कह सकते। संस्कृत में एक बहुत बढ़िया कहावत है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात असत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम। तो वो जो बात है ना कि आप सत्य बोलिए पर अप्रिय सत्य मत बोलिए, है ना। और प्रिय लगने वाला झूठ भी मत बोलिए, ठीक है। वेट, असत्य बोलिए पर अप्रिय सत्य मत बोलिए, और प्रिय लगने वाला झूठ भी मत बोलिए। मैं समझा नहीं। You need to explain. मतलब अगर आप किसी को खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि उसको अच्छा लग रहा है, वो भी मत कीजिए। और कोई सच ऐसा भी मत बोलिए जिससे बुरा लगे उसे, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बिल्कुल हर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो बात नहीं कहनी चाहिए। तो मतलब अब देखिए, हम लोगों का काम है ऑफेंड करना, तो आप हर्ट करना एक अलग बात होती है। आप यू आर मेकिंग अ पॉइंट, ठीक है। अब आप बिलो द बेल्ट कर रहे हो,
ठीक है, हालांकि अब जो ये भी है कि जो बिलो द बेल्ट वाला मामला है ये हमेशा पढ़ने वाले की सेंसिबिलिटी पे है। एग्जैक्टली, ठीक है, अब हालत ये हो गई है कि अगर किसी ने अगर मोदी का चेहरा कार्टून में देख लिया तो उसको लगता है ये कार्टून मोदी के खिलाफ है ना। जैसे अभी वेरी इंटरेस्टिंगली आई डिड अ कार्टून आई थिंक टू वीक्स एगो, और यूजली मैं फेसबुक वगैरह पे मतलब कार्टून हम लोग उसके थ्रू पोस्ट करते हैं। एक उनका एक अलग से ऑप्शन है जिसको मेटा का बिजनेस सूट कहते हैं, उसके थ्रू आप पोस्ट कर देते हैं और कभी देखते भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो एक दिन मैंने ऐसे ही देखा कि उसमें कार्टून, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये था कि मोदी इज सिटिंग एंड जर्नलिस्ट इज आस्किंग कि सर आप इतना काम करते हैं तो कभी थकते नहीं हैं, कोई टॉनिक लेते हैं क्या? एंड देन द सेकेंड फ्रेम राहुल गांधी इज़ वॉकिंग, उसका भारत जोड़ो चल रहा है, और वो सेम जर्नलिस्ट इज आस्किंग कि आप थकते नहीं हैं, कोई ज़रूर कोई टॉनिक लेते होंगे। तो बेसिकली सी द थिंग इज, अब नाउ आई सॉ समबडी कमेंटेड ऑन इट कि आप मोदी जी पे इतने कार्टून बनाते हैं, आप थकते नहीं हैं क्या? लेजेंड। तो आई आस्क्ड हिम कि यार अगर मैंने उसको सिंपली ये कहा कि मैं जनरली कभी इंटरफेयर नहीं करता हूँ आपको, और फेसबुक पे वाकई में नहीं, मतलब आपको गाली भी देनी है आप गाली दे के जाओगे, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है उसको, मैं तो नहीं पढ़ता। तो आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा लेकिन मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि इस कार्टून में मोदी जी के खिलाफ क्या है ना? करेक्ट। तो ही रोट लाइक 3-4 लाइन्स जो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, और इफ़ यू गो टू दैट कार्टून यू विल सी। तो मैंने उससे कहा ये सारी बातें ठीक हैं जो आप लिख रहे हो। उसने लिखा कि कार्टून ऐसा होता है जो 1000 वर्ड की बात एक उसमें कह सकता है, दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड आई एम योर ओल्ड रीडर, आई सी ऑल योर कार्टून्स वगैरह वगैरह। मैंने कहा ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप मुझे बस केवल इतना बताओ कि इसमें मोदी जी के खिलाफ क्या है। क्यों ये कार्टून, इस कार्टून में मोदी के खिलाफ कुछ नहीं है, इस कार्टून में राहुल के खिलाफ भी कुछ नहीं है। इस कार्टून का जो कमेंट है वो बेसिकली जर्नलिज्म के है ना। तो पर लोग ऐसे हैं कि उन्होंने देखा कि मोदी बैठा हुआ है और राहुल चल रहा है यार, तो ये तो बिल्कुल, ये तो मोदी तो चल ही नहीं रहा यार। तो ये जो इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बात है कि आपने बगैर उस चीज़ को देखे समझे आपने बस खट से कमेंट कर दिया, है ना। वो मतलब बगैर पढ़े हुए कि क्या लिखा गया, क्यों लिखा गया है। Of course. Like आप इतने टाइम से कार्टून्स बना रहे हैं, like pre this government also, I'm sure. हाँ right. तो like since that government was pre social media, तो आपको लगता है कि social media की वजह से it's become difficult, like, or was it as difficult to make fun of the leaders then also, और comment about them, बस, या फिर अब ज़्यादा फील होता है क्योंकि हमें comments इतना accessible हो गए हैं for people to reach out to us? You know who comes to mind immediately? Asim Trivedi. See, the Asim case was slightly different. I will tell you why. I'll just explain to who. Yeah, exactly. To people who don't know. So Asim Trivedi was a cartoonist. In 2011, if I'm not wrong, he drew two cartoons. One was, I think, the national emblem was made of wolves dripping blood from their face, and the other cartoon was Parliament in the middle surrounded by toilets, and the sewage of India is what it was. So basically like so all the shit is going to Parliament is what he was trying to say. That was तो उसपे sedition लग गया basically. That was peak. He was arrested. That was peak of Anna movement. Yeah, right. Yeah. तो वही, like, that's my question, like, has this always been there, like, government की तरफ से pushback, like, for lack of a better term, गवर्नमेंट के फैंस तो अब ज़्यादा ऑब्वियसली एक्सेसिबल हैं, आपको वो कमेंट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, बट पहले तो देयर वाज नो वे ऑफ देम रीचिंग। कमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए मैंने एक कार्टून बनाया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उस कार्टून के जवाब में हो सकता है कोई कार्टून बनाए, आई हैव नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे कि उस कार्टून में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, इट विल लुक लाइक इट इज़ माई कार्टून, ठीक है, एंड देन दे विल पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। वो एथिकली भी गड़बड़ है, एंड है क्या कि लोग इतने गलिबल हैं कि लोगों को लगता है कि वही मैंने बनाया है ना। तो ठीक है, यू वांट टू क्रिएट अ पैरोडी ऑफ माय कार्टून,
यू शुड ड्रॉ योर ओन कार्टून, ठीक है, डोंट डू दिस कि उसको और वो मेरा नाम भी लगा हुआ है, सब कुछ है, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा एथिकली गलत है। तो योर क्वेश्चन वाज कि अभी जो लोग हैं, और देन असीम त्रिवेदी वन वाज इज आल्सो देयर, ठीक है। तो है क्या कि सी आई स्टार्टेड ड्राइंग कार्टून्स प्रोफेशनली in 1989. The year I was born. Holy shit. Holy shit. Okay, go on. 5 years before I was born. तो और वो मतलब न्यूज़पेपर्स में अपीयर होते थे। तो हम लोगों को जनरली जो माहौल मिला वो यही था कि लाइक पीपल यूज्ड टू प्रेज अस। Who people? People means readers. Readers, okay. People not means the office people. Readers. Reader. People used to praise us. People used to like us. और I was in college that time. तो था भी ये कि कॉलेज वालेज में भी जो लोग जानते थे, ऐसा नहीं था कि सारे लोग जानते थे, तो वो बताते थे कि यार मैंने वो देखा, बढ़िया था और अच्छा था। और ऐसा नहीं था कि उस समय उसके बाद मतलब फिर देयर वाज कांग्रेस गवर्नमेंट, क्योंकि जब मैंने शुरू किया उस समय राजीव गांधी पावर से बाहर हो चुका था, ठीक है, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। तो couple of cartoons I did on VP Singh, and then there was Narasimha Rao, and then वाजपेयी। तो कभी भी इवन वाजपेयी जी के टाइम में भी कभी हम लोगों को इस तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके। तो इवन वाजपेयी वाज वेरी पॉपुलर लीडर। ऐसा नहीं है कि वाजपेयी को अगर आप देखें तो उनको चाहने वाले लोग नहीं थे। दिस वाज अर्ली 2000s। No, it was the 97 to 2004। हाँ ना। तो मतलब उनको चाहने वाले और जिस तरह के काम उन्होंने किए कि वो सरकार जो थी वो ऐसा नहीं था कि उनके पास 300 MPs थे और इस तरह का, उसके बावजूद जैसे ही वो आए वैसे ही उन्होंने पोखरण में बाकायदा न्यूक्लियर टेस्ट वेस्ट कर दिए, है ना। और उसके बाद आपके पास सैंक्शंस भी लगे, एंड वी डिड कार्टून्स, लाइक आई डिड कार्टून व्हिच अपीयर्ड इन इंडिया टुडे। Oh, nice. I was in India Today with that during that period. तो with India Today during that period, तो उस समय मतलब कभी ये नहीं हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई डिक्टेट आया हो कि यार हम लोग इतने मतलब हम लोग तो अपसेट हो गए, हम नहीं मतलब हम तो हाँ राष्ट्र को हमने इतना वो दे दिया और हम अब न्यूक्लियर पावर हो गए, हमने घोषित कर दिया, और आप जो हैं वो एंटी नेशनल काम कर रहे हो और हमारे खिलाफ कभी नहीं। बट अब आपको एक्सपीरियंस अरे बिल्कुल मतलब लाइक फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज ओनली, लाइक नॉट देयर फैंस। इस गवर्नमेंट के साथ क्या है कि वो कभी किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करती है, करेक्ट, अनलेस अनटिल क्रेडिट लेना हो, ठीक है, उसके अलावा वो कभी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। वो जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा उसका कुछ ना कुछ गणित होता है ना। जैसे अभी 10 दिन पहले जो आदमी पार्लियामेंट में मास्क लगा के बैठा था, वो उसी शाम एक शादी में बगैर मास्क लगाए चला गया, ठीक है, और वो कल कर्नाटक में बगैर मास्क लगाए रैली और रोड शो कर रहा है, ठीक है। एंड because see the thing is, because you are not accessible to press, nobody can ask you this question, and people whom you are allowing to ask you questions, they are asking कि सर आप थकते नहीं हैं, आप बटवा रखते नहीं हैं, आप बटवा नहीं रखते हो, यस, आप कैसे खाते हो। मोदी अगर उस दिन ये कह देता कि मतलब मैं बटवा रखता हूँ, तो हो सकता है वो जर्नलिस्ट ये कहता है कि सर पैसे दे दीजिए, पेमेंट नहीं हुआ मेरा। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस। और ऐसा नहीं है कि आज है। मनमोहन सिंह, आई रिमेंबर ही कंडक्टेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस which went very badly. उसमें अर्नब गोस्वामी ऑलमोस्ट चिल्लाने लगा था प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऑलमोस्ट। हाँ, ठीक है। तो अगर होगा कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, यू कैन गो एंड वॉच इट। और जब अर्नब चिल्लाने लगा तो राजदीप को लगा कि यार मतलब ये क्या, तो राजदीप उससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका था, एंड देन राजदीप आल्सो स्टार्टेड आस्किंग समथिंग क्वेश्चन इन द सेम समथिंग सिमिलर इन द सिमिलर टोन, एंड जो प्राइम मिनिस्टर के 7 लोग थे उन्होंने कहा कि सर ये क्वेश्चनिंग मतलब ये इंट्रोगेशन नहीं है ना, आप इस तरह से सवाल नहीं पूछ सकते। उसके बावजूद भी अर्नब गोस्वामी ने है ना, और उसका कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ उसको नौकरी से निकाल दिया गया। नेशन वांट्स टू नो। पर उसी इंटरव्यू में एक और जर्नलिस्ट ने जो वहाँ पे थे, उन्होंने बहुत ही गजब सवाल पूछा था, और यू विल गो टू यूट्यूब और अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह का सवाल था। मतलब आप एक माहौल समझिए कि पूरे कंट्री में रोज़ खबर छप रही है कि इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, वाड्रा ने यहाँ ज़मीन खरीद ली, वाड्रा ने ये कर दिया वगैरह वगैरह। तो ये माहौल बना हुआ है, अन्ना मूवमेंट अलग से चल रहा है,
उसमें सडनली क्रिकेट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर किसी ने सवाल पूछा है ना कि क्रिकेट टीम वहाँ जा रही है, तो आप इफ़ यू गो टू यूट्यूब और यू वॉच इट तो यू विल फाइंड इट। तो इस तरह के लोग हमेशा रहे हैं, ठीक है। एंड एज सून एज यू विल स्पॉट दैट जर्नलिस्ट यू विल इमीडिएटली रियलाइज कि ये क्वेश्चन किसने पूछा, क्यों पूछा, और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो आज कहाँ हैं। राइट। ठीक है, तो इस तरह के लोग हमेशा थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे और अभी हो गए, है ना। पर अभी एक तो ये है कि ये भी बात सही है कि 30 साल में ये पहली सरकार है जिसके पास पूर्ण बहुमत है, ठीक है। तो जो हम लोगों को बताया जाता है कि ना पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, हाँ। तो हो सकता है वो एक रीज़न हो, क्योंकि राजीव गांधी के पीरियड में मैं काम नहीं कर रहा था, आई वॉज क्वाइट यंग, लेकिन राजीव गांधी के मतलब मैंने जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू किया पॉलिटिक्स में वो 1984 के राइट्स के बाद लिया, कि वो राइट्स ने अपनी आंखों से देखे थे, ठीक है। मतलब सडनली स्कूल में ये हुआ कि यार छुट्टी हो गई, तो ये लगा यार छुट्टी 2 घंटे पहले छुट्टी कैसे हुई? ये तो बहुत मस्त चीज़ हो रही होंगी बाहर। तो हम लोग अपना निकले बाहर और कुछ लोग सामने ग्राउंड था वहाँ क्रिकेट खेलने लगे। और कुछ लोगों ने कहा, तो टीचर्स बाहर आए, उन्होंने कहा नहीं आप घर जाइए, ठीक है। और हम लोगों को भी, तो हम कुछ 4-5 लड़के साइकिल चलाते हुए घर लौट रहे थे, सडनली उसमें से किसी ने कहा कि नहीं यार वो इंदिरा गांधी को किसी ने मार दिया। तो मुझे लगा यार ये क्या हुआ। देन आई केम होम, और उसी समय नया नया टीवी आया था हमारे घर में, तो वो लगातार 3-4 दिनों तक वो केवल इंदिरा गांधी का शव और वो नारे ही दिखाते रहते। एंड आई सा माई ग्रैंडफादर वाज वीपिंग ऑल द टाइम, ठीक है। वो जब भी वो दिखाते थे वो रोने लगते थे, ठीक है। वो उसका रीज़न ये था कि इन लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म एसोसिएशन था, मतलब ऐसा नहीं है इंदिरा गांधी की फैन फॉलोइंग कम, ठीक है। मेरे नाना को मैंने देखा है कि वो अगर कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोल दे तो उस पर बहस करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता था। तो उस तरह का था, है ना। बस ट्विटर नहीं था उस टाइम। हाँ, उस तरह का नहीं था, लेकिन सी ट्विटर क्या है, ट्विटर ने आपको केवल एक इंटरेस्टिंग वाकया याद आया इंदिरा गांधी के डेथ के बारे में। सो in our house, so लैंडलाइन थे ना तब, तो माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी दिस स्टोरी। तो वो जो लोकल न्यूज़पेपर था उसका जो नंबर था एंड आर नंबर वाज 1 digit away, like it was 62 and 61, right? तो we used to get all the time calls from reporters across the country कि ये हुआ है वो हुआ है, like whatever, and like grandfather like usually like didn't really care about it much, and कुछ नहीं हुआ. So this happened. Indira Gandhi was killed, right? And that phone came to our house, and it's like मार दिया उनको, and it's like क्या हो गया, किसको मार? So my grandmother was like, what is happening? Like कि प्रधानमंत्री को मार दिया. Like what? It's like हाँ, इंदिरा गांधी का हत्या हो गया है or whatever. And then she didn't even say it was a wrong number, right? She called the newspaper office and she was like, I have to tell you this news right now. This is the first time I'm calling you. एक तो आपका wrong number हमारे पास बहुत आता है, और दूसरी चीज प्राइम मिनिस्टर को मार दिया है. So sorry, just random aside. नानी should have just refuted. नहीं हुआ यार, मेरे साथ ही बैठी हैं वो, क्या बात कर रहे हो तुम? So till the day she died, she repeated this story saying the first person to find out in Nagpur that Indira Gandhi died was me. Like, sorry, you were saying. हाँ, तो एक तो ये है कि ट्विटर बेसिकली आपको एक प्लेस देता है जहाँ पे आप अपनी ओपिनियंस तो हमेशा से थी, ओपिनियंस तो 1000 सालों से रही होंगी. तो बस उसने क्या किया कि आपको लाके एक जगह दे दिया है जहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ सारे लोग अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं. बाकी ओपिनियन तो थी, तो लोग तो पहले भी लड़ रहे थे, ऐसा नहीं. बट मंजिल सॉरी, यहाँ पे मुझे एक चीज़ भी बोलना था कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कार्टून बना लिया जिससे से मनमोहन सिंह ऑफेंड हो गया या फिर कोई वाजपेयी जी ऑफेंड हो गया, व्हाटएवर. तब का टाइम में इफ समवन हैड टू क्रिटिसाइज यू, दे वुड आइदर पिक अप द फोन, कॉल यू, एंड इफ दे हैड योर नंबर एंड देन आपको बोलेंगे, बट वहाँ पे वॉइस का यूज, या फिर आपके फेस टू फेस आके उनको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, या फिर लेटर टू द एडिटर, राइट, यू नो, लाइक. एंड वो एकदम ऐसे अच्छे से, यू नो, लाइक स्पेल चेक वगैरह तो एडिटर लोग ही कर लेंगे, तो उसमें कोई ऐसे ये नहीं कर सकते. बट यहाँ पे विथ ट्विटर व्हाट इज नाउ हैपनिंग, आई सी योर कमेंट्स, सो मेनी रैंडम कमेंट्स यू गेट ऑल द टाइम,
and he also responds to them. He keeps doing that. I see him do that. Sometimes अगर मुझे लगता है कि कोई सही बात कर रहा है तो मैं उसको engage भी करता हूँ. Exactly, engage भी करते हो. But the point is that because of Twitter ना, एक तो anonymity possible है, plus वो थोड़ा सा distance भी हो जाता है ना, कि directly तुम्हारे emotions नहीं जा रहे. Just एक text लिख के आपने भेज दिया कि हाँ मेरे को ये कार्टून पसंद नहीं है, फिर that guy who was arguing with you on Facebook. Right? The barrier to entry to communicate has gone down. Also, the civility has gone down because of that, because now you don't need to care anymore about being civil about while expressing your opinion. इसमें एक बहुत मज़ेदार बात है, because you are saying so. है क्या कि जो यंग जनरेशन है वो वर्ड्स का जो मतलब समझती है, ठीक है, वो शायद हम नहीं समझते हैं. जैसे जब ट्विटर पे पहली बार किसी ने मुझे कहा कि यू आर अ लेजेंड, तो मुझे बड़ी शर्म आई. मुझे लगा यार क्या कह रहे हैं यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यार. क्योंकि मेरे लिए लेजेंड क्या है, मेरे लिए लेजेंड रामायण है, महाभारत है. ठीक है यार, लेजेंड होनी चाहिए भाई. लेजेंड तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी को भी आप लेजेंड कह दो, है ना. तो लेकिन फिर मैंने देखा है हर आदमी दूसरे के लिए कह रहा है कि ये लेजेंड है. तो मुझे लगा यार क्या लेजेंड, तो यार मतलब बिल्कुल कुछ भी है वो लेजेंड है. तो मुझे तो है क्या, वो जो ग्रेविटी ऑफ द वर्ड्स होनी चाहिए. तो आप किसी को भी कुछ भी कह दो तो उसकी ग्रेविटी उनको पता ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हो. ठीक है, आप बड़े भाई से बात कर रहे हो, आप अपने से बड़े आदमी से बात कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, पर आप कुछ भी कह सकते हो. तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो मामला है ना, और जो आपको शुरू से सिखाया जाता है ना कि देखो इस तरह की बात नहीं करनी है ना. ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से बात कर लेते हैं. मैंने लोगों को देखा है जो मतलब मुझसे 10 गुना अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं. किसी भी सिचुएशन को वो अपनी बातचीत से डिफ्यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो एनीवे वो बीच में वहाँ जब छूट गई थी बात, तो मैं वो बता रहा था कि 1984 के जब हम घर पहुँचे और ये सब हुआ, तो सडनली आई रियलाइज़ कि आसपास इस तरह का माहौल बन गया है कि तो मतलब अब ऑब्वियसली आप जिस जगह रह रहे थे वहाँ पे सिख सिख फैमिलीज़ थी. तो हमारे घर में मतलब उस मोहल्ले में जो सबसे खूबसूरत मकान थे वो एक सिख फैमिली का था जो बिल्कुल हमारे सामने था, और उसके बगल का जो मकान था वो भी इक्वली खूबसूरत था, वो भी एक सिख फैमिली का था. दोनों को जला दिया. ठीक है. और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने उसमें पानी वानी डाला, उसको बुझाया, फैमिली को वहाँ से निकाल लिया गया, उसको पुलिस वाले लेके गए, और फायर ब्रिगेड वालों ने बाकायदा भीड़ को इशारा किया कि तुम जला दो, और वो चले गए. इट वाज इन कानपुर. ओके. हाँ, ठीक है. तो जब वो ख़त्म हुआ तो सारा कुछ मैडनेस ख़त्म हुई. तो उसके बाद फिर मतलब ये भी हुआ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसके बाद खबरें छपी कि पता चला कि आपका एक बहुत छोटा सा घर है और उसके अंदर से टीवी वीसीआर निकल रहा है. टीवी वीसीआर उन दिनों बड़ी चीज़ होती थी. मतलब 84 में ऐसा नहीं हो सकता था कि टीवी वीसीआर सबके पास हो, राइट, है ना. तो मतलब फ़ोन सबके पास नहीं हुआ करते थे. तो आज की जनरेशन के लिए थोड़ा इमेजिन कर पाना मुश्किल है ना, कि छोटे घर से तो निकलेगा टीवी वीसीआर, और कहाँ से निकलेगा. तो और बाइक वाइक भी नहीं होती थी, साइकिल्स नहीं होती थी सबके पास, जो बहुत कायदे से मैं अगर इसको कहूँ हर किसी के पास साइकिल भी नहीं होती. ठीक है, आजकल बच्चे स्कूल बसेस से जाते हैं, होता नहीं था. ठीक है, लोग 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बच्चे पैदल चल के स्कूल जाया करते थे. ठीक है. तो वो जो लेडी थी, जो उस घर की सबसे ओल्ड लेडी थी, वो मेरी दादी से मिलने आई. नहीं सॉरी, मेरी दादी नहीं थी उस समय, वो मेरे घर आई थी. तो मेरी मदर बैठी थी और उसके साथ वो बैठ गई. तो जो मैंने उनकी शक्ल देखी है जिस तरह से, और जिस तरह से उन्होंने बात की थी, और उनको कुछ चाहिए था, घर का कोई बहुत छोटा सामान चाहिए था, जो कि, और उतने सालों में कभी उन्होंने हमसे बात नहीं की थी, क्योंकि कोई मतलब भी नहीं था. वो सड़क के उस तरफ थी, हम सड़क के इस तरफ थे, राइट. और हम बहुत आउटगोइंग पर्सन भी नहीं थे ना, हमारी कोई फैमिली इस तरह की थी कि नहीं आप, और वो बड़ा ओपन किस्म का मोहल्ला था, बहुत ऐसा गलियों वाला और उस तरह का मोहल्ला नहीं था. तो पर जिस तरह से उनका चेहरा जो था, और तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको छू के जाती हैं, है ना, कि आपके
पड़ोस में आपने देखा जिनके साथ आप क्रिकेट खेलते थे, हम लोग उनको चाचा जी कहते थे, वो सॉस की एक बॉटल जो थे वो लूट के ले आए एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी। ओके। ठीक है। और जिस बंदे से आप रोज सामान खरीदते हो, आप उसकी दुकान से सॉस की एक बॉटल लूट के ले आए। हाँ हाँ हाँ। क्या मतलब सॉस की बॉटल क्या है यार? हाँ, ट्रू। हो सकता है वो खाते भी नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब सॉस वॉस लोग नहीं खाते। हाँ हाँ, श्योर। मतलब ऐसा नहीं था कि सॉस बहुत खाने का पार्ट हुआ करता था। तो ये सारी वो चीज़ें थी जब आपको लगा कि क्या हो रहा है, तो उस चक्कर में आपने पेपर वेपर थोड़ा पढ़ना शुरू किया। तो और उसके बाद चूँकि इमीडिएटली आफ्टर दैट इलेक्शंस हुए और राजीव गांधी बिल्कुल ब्रूट मेजॉरिटी के साथ आए थे, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप वो दौर भी देखें तो उस दौर में भी उन लोगों ने पूरी कोशिशें इस तरह की थी कि जो भी इस तरह का क्रिटिसिज्म है, जो कुछ भी है उसको, I mean, इमरजेंसी के टाइम पे भी obviously like there उस was समय तो देखिए मैं high बहुत छोटा censorship. था, उस समय मैं बहुत छोटा। हाँ, you were very young. हाँ, तो but, मुझे पता भी नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन जो लोग बताते हैं, जैसे लाइक आई टोल्ड यू कि मेरे एक नाना थे, मेरे सगे नाना जो थे, वो बेसिकली ही वाज प्रो इंदिरा गांधी। right. तो आई हैड अनदर नाना जो नाना के कहना चाहिए रिलेटिव थे, वो आरएसएस के वर्कर थे। right. तो उनकी वाइफ जो थी वो तो शी वाज डेड अगेंस्ट इंदिरा गांधी। true. वो इंदिरा गांधी को आप नाम लीजिए वो गाली देना शुरू कर देती। ठीक है, आपके क्योंकि तो घर पे ही ट्विटर थ्रेड चल रहा था क्योंकि उनकी वजह से उनके हस्बैंड को काफ़ी टाइम तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा, है ना। तो ये भी है, ये सब ऑब्वियसली इन लोगों ने भुगता है तभी तो। लेकिन बात ये होती है कि आप किसी पीड़ा से निकलते हैं, आप किसी तकलीफ से निकलते हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को उस तकलीफ की तरफ ना जाने दें। right. आप लोगों को वो तकलीफ देने नहीं लगते। right. That's true. है ना। आप पता चला कि आप किसी दिक्कत से निकले तो आप ये कोशिश करते हो ना कि और किसी को वही दिक्कत हाँ, ना मतलब हो। सड़क पे गड्ढा है और आप उसमें गिर गए, तो आप उस गड्ढे को बड़ा नहीं कर देते हो ना जब आप पावर में आ जाते हो। तो कि अब सारे लोग इसमें गिरे और सबको पता चले कि, है ना। आप कभी लाइक डू यू एवर सेंसर योरसेल्फ बेस्ड ऑन स्किल काइंड ऑफ अ थिंग कि यार अडानी के ऊपर मेरे को कार्टून बनाना है पर मेरे को अडानी ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है, छोड़ो अंबानी के ऊपर बना देना। नहीं, तो वो तो फिर देखिए वो तो बेईमानी है ना। वो तो अगर आपको अडानी के ऊपर कार्टून बनाना है तो आपको अडानी के ऊपर ही कार्टून बनाना चाहिए। फिर मतलब अगर न्यूज ऑफ द डे अगर अडानी है, राइट, तो फिर अंबानी के ऊपर कार्टून बनाने का नहीं लाइक डू यू एवर कि छोड़ो लाइक दिस इज टू टफ टू ड्रॉ, मैं नहीं बनाता इस पे, लाइक डू यू एवर सेंस योरसेल्फ लाइक दैट स्किल बेस्ड? नहीं, देखिए ये होता क्या है कि आपको करना ये होता है कि जो न्यूज़ ऑफ द डे होती है आपको उसको हैंडल करना होता है ना। कोई ऐसा नहीं होता कि सुबह मैं उठता हूँ और सोचता हूँ कि आज अडानी पे बनाऊंगा। आप सुबह उठते हैं, आप न्यूज़ देखते हो, ठीक है, आप सोचते हो कि यार ये न्यूज़ जो है ना इसमें यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, ये उसमें थोड़ा आपको गुस्सा आता है ना कि यार क्या हो रहा है। तो देन यू ट्राई टू से समथिंग अबाउट that particular situation. So you capture that emotion into that cartoon. Okay. है ना। तो वो होता क्या है कि कभी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत बढ़िया बात कह दी है लेकिन रीडर को वो नहीं समझ में आती, तो वो कार्टून डड हो जाता है। ठीक है, या हो सकता है उनको 10 साल बाद समझ में आए तो कहेंगे हाँ यार बहुत बढ़िया बनाया है, लेजेंड थे यार, लेजेंड। देन दे प्रॉब्ली कैन से, है ना। तो या कई बार ये होता है कि आप बहुत को लगता है आपने बहुत एवरेज बात कही है और वो सडनली लोगों को लगता है वाह वाह क्या बात कह दी है, और फिर वो वैसे ही लेजेंड टाइप कमेंट भी आते हैं, है ना। तो वो चीज़ें ये चीज़ें लाइक पार्ट ऑफ द गेम है, पर इस तरह का कभी नहीं होता है। क्योंकि देखिए किसी भी बात को कहने के जो स्किल वाला मामला है वो स्किल यही है कि आपको अगर कोई बात कहनी है तो उसके 100 तरीके हैं, आपको तरीका ढूंढना है ना। आप जैसे नहीं जो लोग हम लोग जब वो पढ़ते थे ना अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में ये कहा जाता है कि प्रूव दिस 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 इज इक्वल टू दिस, ऐसे है ना, या इस तरह का कुछ भी, या ज्योमेट्री में भी आता है प्रूव। हाँ, तो हमारे टीचर ने एक बहुत मज़ेदार बात कही और वो टीचर मुझे अभी भी याद हैं, बहुत मैं पसंद भी करता हूँ उनको। उन्होंने मैथ्स में हम लोग का इंटरेस्ट जो था वो एक तरीके से जगाया। वो कहते थे कि यार देखो जब ये लिखा होता है इसका मतलब होता है कि तो ये है ही है ना, ये तो ऑलरेडी प्रूवन है, तुम्हें वो रास्ता ढूंढना है। तो हमें
पता है कि आप कमेंट तो कर ही सकते हो, आपको रास्ता ढूंढना है कि किस रास्ते से वो कमेंट किया जाए जो तमाम सारी चीज़ों को It is basically okay. So the way I put it, so मैं वहीं पे आ रहा था कि free speech according to me is essentially expression of ideas. Right. कि like he expresses his ideas and his criticism, commentary through cartoons. Right. कि now it's up to the reader whether they want to accept it, reject it, or ignore it. Right, there are only three things you can do essentially, right? Which is after you see it, accept, ignore, reject, right? But the point is that if he is being censored, if he is being censored by some law or even self-censorship or whatever, then that idea never comes out. Which means that process of accepting, ignoring or rejecting will never happen, which means the idea is never challenged or it is not ever interfaced, and therefore civilization doesn't happen. Basically, all of our civilization is based on ideas, and therefore free speech is essentially expression of ideas. And it's I mean, it's a long shot, but I genuinely believe that. It's a very long shot. It genuinely is that though, right? You know, like you might think that you crack some trivial joke on a stage, but someday or somehow some person might be affected by it, and then they would affect other people by it, and then there'll be like a butterfly effect, and then they would become prime minister and all the things will happen. Like sorry. अच्छा, सेंसरशिप के साथ एक और बहुत मज़ेदार बात है. देखिए, लोगों को ये लगता है कि यार आप तो मोदी जी के खिलाफ बना ही रहे हो, आपने तो मोदी के खिलाफ कार्टून बनाया था, कहाँ है सेंसरशिप, आप झूठ बोल रहे हो. ये बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी का तर्क है. आप मोदी जी के खिलाफ कार्टून बना रहे हो या जो भी बना रहे हैं, ठीक है. अब अव्वल तो ये है कि आपको बहुत रेयरली जो एस्टैब्लिश न्यूज़पेपर्स हैं उनमें मोदी के खिलाफ कोई कार्टून मिलेगा. Of course, I saw that. Yeah. या कार्टून छोड़ दीजिए, आपको न्यूज़ ही नहीं मिलेगी. अगर न्यूज़ मोदी के खिलाफ होगी तो वो इस ढंग से लिखी गई होगी, ऐसा लगेगा कि वो लाइक कोरोना का जब सेकेंड वेव आया था तो हर जगह ये चल रहा था कि ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये मोदी की दिक्कत नहीं है, सिस्टम की प्रॉब्लम. हाँ, लेकिन जो अब फिल्म बनने जा रही है कि वैक्सीन मैन की, वो नहीं होगा कि वो सिस्टम ने वैक्सीन बनाई है, अब ये होगा कि वो मोदी ने वैक्सीन. ठीक है. तो ये जो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो जो कार्टूनिस्ट हैं, जो कॉमेडियंस हैं, वो बेसिकली इसको आपके सामने रखते हैं. एब्सोल्युटली. वो कहीं और से आप, जैसे वो कुणाल कमरा कहता रहता है ना कि इतना कंटेंट और कहाँ मिलेगा. हाँ, एग्जैक्टली. हालांकि इतना कंटेंट हर जगह होगा, आपको जाके केवल देखना है. ठीक है. बिकॉज हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, तो हमें वो कंटेंट दिखता है, वो कंटेंट सबको दिखता है. तभी जब कॉमेडियन ये कहता है, जब ये कार्टूनिस्ट उस कंटेंट को दिखा के कहता है कि देखो ये है, तो आपको क्यों हंसी आती है या क्यों आप उसके बारे में सोचते हो? क्योंकि वो तो आपने देखा हुआ है ना. ट्रू. तो ऐसा लाइक लक्ष्मण का जो कार्टून का कॉलम है, उसका क्या नाम है? यू सेड इट. वो ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं आप कह रहे हो. ठीक है, आप फरमाते हैं और एक तरीके से, है ना. तो किसी ने जो कहा है वो आपका रीडर कनेक्ट तभी बनता है जब रीडर भी के पास भी सेम इमोशंस हैं. ट्रू. रीडर उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है. बस ये है कि वो चूंकि अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है कि वो उसके बारे में सोचता नहीं है. तो आप थोड़ा सा उसको हल्का सा ये कहते हो कि यार देखो, ये देखो कितना मज़ेदार. कहता हाँ यार, ये क्या बात है यार, ये तो बात पहले तो यार मैंने सोचा ही. तो वो फॉर अ मोमेंट वो उस पे उसको वो लाफ आता. राइट. I will have to take a break here because we have to take a break here. After the break, we will come back and then I have to talk about obscenity and more about censorship, defamation and sedition. So after the break, I will see you. Hey, what a great week it has been on the IVM Podcast Network. We have a special announcement. Introducing Club Paisa Vaisa, where you get episodes of Paisa Vaisa 3 days before release, bonus and ad-free content, and access to the full show archive. So get your yearly membership today for only ₹6.99. Log on to club.ivmpodcasts.com/paisavaisa. On The Habit Coach, Ashden talks to Dr. Vaidya's co-founder Arjun Vaidya about the legacy business and the feeling he had while taking over the business. On The Origin of Things, Deepak, aka Chuck, narrates the interesting story behind the names of 2 iconic rock music venues. On Smarter with Sid, Siddharth explains the difference between strategy and planning. And on Just a Filmy Game Show, Antariksh quizzes comedians Vrinda Bhakchandani and Namrata Arora. New episodes are out on the IVM Pop channel every Saturday.
And once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some really exciting stuff for you over there. Follow us on social media. We are IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our show, spread the word. Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You'll also find our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Capgemini and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible. Hello and welcome back to Explain Like I'm 10, where we are sitting here asking, do you have free speech? I mean, do these gentlemen have free speech here? Do I have free speech here? If I say something on this podcast where you feel that you do not have that free speech which we are trying to discuss, then please leave it in the comments below कि भाई तूने ये बोला and I do not agree and this is against the laws of free speech or whatever. Speaking of laws of free speech, I wanted to get to that. I think this podcast is a great example of you can say whatever you want because nobody is listening kind of a thing. Thanks. Thanks, कौन Shad. से comments आ रहे हैं तुम लोगों को? I was Thanks, Shad. stalking this channel last night. That is true. We get very few comments, but Manjul does get a lot of comments. Manjul is a big legend, so we are going to talk about laws a little bit. The thing is, there is a law in our constitution which sort of guarantees the right to free speech called Article 19, but it comes with reasonable restrictions. Correct. Okay. Now, our reasonable restrictions are on a few things. So, our constitution says, oh yeah, you have free speech, but right? You can't say anything against the sovereignty and integrity of India. You can't say anything about the security of state, both of which sedition. Then there is friendly relations with foreign states. There is public order. You cannot say anything. What does that mean? Friendly relations with, like, I can't say BTS is great. They'll be like, hey, South Korea के बारे में बहुत अच्छा बोल रहा है. So you can't say anything that sort of ruins the friendly relations we have with other states. It is true. It is a true. And then there is public order. You can't say anything that ruins public order. Like you can say things about Pakistan, but you cannot say things about China. Exactly. Got it. बहुत friendly. शी जिनपिंग से मोदी जी के बहुत करीबी संबंध हैं, लेकिन मोदी जी के पाकिस्तान के लीडर्स के साथ उतने करीबी संबंध. Arey, there was this instance which happened recently where there was an army general who was, routinely we threaten Pakistan because that's what we do. And he was doing his job and then Richa Chadda quote tweeted him saying, Galwan says hi. So he was saying that we are going to take over Pakistan, etc. Pakistan occupied Kashmir. Pakistan occupied Kashmir. And Richa Chadda quote tweeted it saying Galwan says hi. And then Akshay Kumar basically released his troll army against Richa Chadda and stuff. So what he's saying, right? I thought उसने biopic बनाई होती उस movie. I mean, वो भी होगा शायद maybe. But the point is that, like what he's saying, right? Like you can curse Pakistan as much as you want, but you can't ask uncomfortable questions which will ruin your relationships with other friendly states. But okay, so there's public order. You can't say anything which is against public order. There is also decency and morality. So one of the restrictions is essentially you can't do anything obscene in the name of freedom of expression. It can't be indecent and it can't be against the morals of the society. And then there is, of course, contempt of court, defamation and incitement to an offence. So these are all the reasonable restrictions that are in our constitution. I wanted to specifically talk about obscenity first, right? What do you think is obscene? Like, do you have any limits where you would say that nahi, ye hona nahi chahiye tha? This is not something that should have come out in public. And does that ever happen to you? See, obscenity वगैरह है क्या कि जो भी ये restrictions की आपने बात की है ना, तो इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि इसमें जो reasonable restrictions हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है. Exactly. I mean, of course. ये इतना वेग है. Yeah. ठीक है. तो जो पहला अमेंडमेंट था वो मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके लिया गया, तो मतलब मेरे हिसाब से वो सही नहीं था. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सपोज आप इस तरह की कोई बात कर रहे हो जो हार्मफुल है, तो केवल बात करने से हार्म नहीं होता है. अगर उसमें कोई एक्शन भी आपका ऐसा है जो हार्मफुल है, तो उसको डील करने के लिए आपके पास सैकड़ों लॉज हैं. Yeah. Like for example, sedition is a big example of this, right? So sedition is a law. इवन अगर आप सेडिशन हटा भी दें,
तो भी यहाँ पे तो देखिए हालत ये है ना कि अगर आप अपने आप को रिलीव कर रहे हो बाहर, ठीक है, तो भी पुलिस वाला आपको पकड़ सकता है और आपसे कम से कम 10 कानून ऐसे बताएगा जिसका आपने उल्लंघन किया है। इंडिसेंसी 25 कानून, तमाम सारी वो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से लेकर, राइट है ना। तो मतलब अगर आप स्टेट की माइट देखना चाहते हो तो आप एक बार चैलेंज करके देख लो किसी पुलिस वाले को, ठीक है। जैसे जो हिंदी हार्टलैंड है वहाँ एक कहावत चलती है कि सारी CRPC जो होती है, सारी IPC जो होती है, वो दरोगा के डंडे में होती है। ठीक है, एक्यूरेट है ना, क्योंकि उस समय आपको कोई वकील, कोई जज, कोई नहीं बचा सकता। करेक्ट। भाई चंदा कोच्चर को आपने जेल में रखा ना 2-3, उसके बाद वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने कहा ये इलीगल है, ठीक है, उसने कहा ठीक है, उसकी बेटी की शादी के कार्ड छपे हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कैम एंड अदर थिंग्स। वो 3 साल से आप वेट कर रहे थे, तो आप इसलिए वेट कर रहे थे कि जब वो अपने बेटे की शादी का कार्ड छपवा के और बेटे की शादी की तैयारियां कर रही होगी तब जाके आप उसे गिरफ्तार करोगे। तो जो इंडियन लॉ एजेंसीज हैं वो बड़े मिस्टीरियस वे में काम करती हैं। वो किसी को समझ में नहीं आता है कि, और लोगों को ये समझना चाहिए कि देखिए आप किसी को भी सपोर्ट करते हैं, आपने वोट दे दिया, वो बंदा पावर में है, उसके बाद आप सिटीजन हैं, आप उस पावर को एंजॉय नहीं करने वाले हैं, राइट। आपको सिटीजन के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। करेक्ट। गवर्नमेंट जो कर रही है जिससे सिटीजन के अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको बोलना चाहिए। आप किसी को भी वोट देते हैं, चुन के बिठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुन के बिठाते हैं तो आप हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। आपने चुन के बिठा दिया, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, जो ऑब्सेनिटी के बारे में आपने कहा, तो ऑब्सेनिटी तो देखिए बहुत इस तरह की बात है जो हर आदमी के साथ डिफर करती है। एग्जैक्टली, है ना। वही जैसे फ्रेंडली रिलेशन है, तो भैया आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछिए जाके भाई कि आपका दुश्मन देश कौन सा है। तो कहेगा नहीं सर, तो पूरे हिंदुस्तान तो हमारा 10,000 साल पुरानी संस्कृति है, हमारे लोग तो हर जगह हैं, है ना, हर देश से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। वो आपको इस तरह का ज्ञान देगा, ठीक है। तो आप तो किसी देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। That's true. वो तो आपका तुरंत वो कर्म हो जाएगा। तो बात यह है कि आपने इस तरह की जो बातें कही हैं और उसको किया है, और जिसको राइट विंग हमेशा नेहरू को गाली देता है, तो भाई अगर आप 370 हटा सकते हो, जैसे भी हटाया, तो भाई इसको हटा दो, इस अमेंडमेंट को करवा दो फ्री स्पीच। लाइक आई एग्री, मेरे ख्याल से तो लाइक एब्सोल्यूट ही होना चाहिए फ्री स्पीच तो एट द एंड ऑफ द डे। You don't think there should be any restrictions? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए ना यार, जैसे आप नहीं कह भाई। देखिए बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन अब आप कर नहीं सकते हो। हमारे प्रिंसिपल हमें सिविक्स पढ़ाया करते थे, ठीक है, तो उन्होंने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था कि यार देखो ऐसा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, और पर ज़रा आप एक बार जाओ और किसी मिठाई वाले की दुकान से जलेबी उठा के भाग लो, आपको पता चलेगा, है ना। तो हर चीज़ सेट, मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जो हैं वो आपने पलते बढ़ते सीखी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने झूठ बोलना भी सीखा, बहुत सारे, है ना। लेकिन आपने कभी कहीं ये नहीं सुना होगा कि किसी स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा हो कि झूठ बोलना चाहिए, इससे बड़े फायदे होते हैं। But so both of you are in agreement that free speech should be absolute, essentially. From at least from the government side, like for example, जैसे अभी वो पूरा हुआ था कान्ये वेस्ट वाला, अगर आप लोगों ने फॉलो किया कि कान्ये वेस्ट ने हिटलर को बोला कि क्या ग्रेट है, और उसकी सारी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह चली गई। दैट आई थिंक इट्स फाइन कि अगर प्राइवेट एंटिटीज वांट टू डिसएसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम यू, बट आपको ऐसे जेल नहीं होना चाहिए। तो लाइक फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट ब्रिंग अप वन, नुपुर शर्मा। मुझे लगता है कि वो भी नहीं होना चाहिए। नुपुर शर्मा फॉर एग्जांपल, देखिए बात यह है कि नुपुर शर्मा वाला जो मामला है उसमें यह है कि उसने कोई बात कही, ठीक है। क्या मामला? So the मामला was that she went on a TV channel and she basically quoted the Quran where there were things about Muhammad which were not nice, like which people got offended by, and then a bunch of friendly nations like in the Middle East, they got upset, they started boycotting Indian goods. Then BJP distanced themselves from Nupur Sharma, who is the BJP spokesperson, called her a fringe element,
And then she got a lot of threats also. She continues to get some threats. Oh. Today Correct. she got a gun license apparently to protect herself. Achha, that I don't know. I just read it somewhere. And also like a lot of people were like, नहीं इसको jail करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए. That I disagree with. That you like disagree if the with. whole जो भी उसके साथ हुआ, I disagree with. Right. Yeah. I agree. I mean, like I also think she shouldn't be See, acted upon by देखिए authorities. चैनल ये कह के बच के निकल गया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं हाँ, हमारा कोई रोल नहीं है. पर बात यह है कि देखिए आपने एक बीजेपी के एक ऐसे स्पोक्स पर्सन को बताया है जो इस तरह की बातचीत करने के लिए जानी जाती हैं. Yeah, Correct, हाँ. ठीक है. तो होता क्या है कि जो अगर किसी को भी होता क्या है, हम लोग जो व्यूअर है ना उसको पता नहीं है कि चैनल कैसे काम करता है. ठीक है. तो असीम त्रिवेदी वाले मामले में मेरे पास अर्नब गोस्वामी के यहाँ से फ़ोन आया. तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि वी वांट यू एज अ पैनलिस्ट. तो मैंने उससे कहा कि नहीं यार, तो मैं तो टीवी वगैरह पे जाता नहीं हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊँ. नेक्स्ट थिंग द गर्ल आस्क्ड मी कि सर अच्छा आपकी पोजीशन क्या है इस पे. ठीक है. तो है क्या कि वो आने से पहले ये इंश्योर करते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, जो अर्नब गोस्वामी या जो भी वहाँ पे एंकर बैठा है उसको बताई जाती है. तो वो बेसिकली आपसे वो ओपिनियन जानने के लिए अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछता है. Correct. ठीक है. तो पर हमेशा ऐसा नहीं है. जैसे एक बार मुझे रवीश कुमार ने बुलाया था अपने शो पे, तो मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता था. तो रवीश हिमसेल्फ केम ऑन द फोन एंड ही सेड कि क्या हो गया सर. तो मैंने कहा कि अरे मेरा गला बहुत ख़राब है. बोला अरे 2 गरारे कर लीजिए सर, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो वो कोई पहले से नहीं था कि उसको नहीं पता था मैं क्या बोलूँगा. या बरखदत के साथ जो भी एक शो किया था हमने, तो बरखदत को भी पता नहीं था कि मैं क्या बोलूँगा. तो है कि कुछ लोग पहले से ये जानना चाहते हैं कि आप क्या बोलने वाले हैं. वो टिकर लगाना होता है ना नीचे, क्वेश्चंस गवर्नमेंट, सपोर्ट्स गवर्नमेंट. हाँ, तो बेसिकली है क्या कि जैसे अगर उनको ये पता चल जाए कि आप असीम त्रिवेदी के फेवर में हैं, तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जो असीम त्रिवेदी के अगेंस्ट है, of हाँ. course. तो वो क्या है कि वो एक थोड़ा ड्रामेटाइजेशन होगा उसमें. Correct. तो अगर जिसे ये बात पता है कि टीवी इस तरीके से काम करता है, उसके लिए ये समझना बहुत आसान है कि ये जो आप देख रहे हैं WWF है. Absolutely. है ना. जिसको नहीं पता है उसको लगता है कि वाह क्या ग्रेट बहस हो रही है ना, क्या लोग बोल रहे हैं, क्या पॉइंट लेके आ रहे हैं, है ना. And you know the interesting thing is that Nupur Sharma, the channel she went on, 3 channel उसके पहले she said the same thing. Right, but the 4th channel that she went to, that is where the outrage actually happened. And then they blamed Mohammad Zubair, the alt Correct, news. They blamed him because he took out a clip and then put it online, which created the outrage, which created the international outrage, etc., etc. But the point being that I also agree with you कि उसके against जो like I mean cancelling is okay. Like social cancelling is one thing, but authorities taking action against people and putting them in jail for what they say, that is not okay. I think that is also a big waste of resources also in a lot of ways. और मुझे ये लगता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उसको मार दिया जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो तो मूर्ख लोग हैं बिल्कुल. Of course, कोई हाँ. मतलब नहीं है. देखिए, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं. उनके अगेंस्ट होना चाहिए था एक्शन, आई फील, बिकॉज दैट इज लाइक ऐसा अटेम्प्ट टू मर्डर, बट व्हाटएवर, incitement to an offense. Yes. Is the thing. Exactly. But you know, the other thing although I have to point out, I don't believe that freedom of speech should be absolute. There should be like 2 tiny things that I think should be restrictions, right? One is, of course, I think if there is a legitimate defamation law in place, which is like if I have an actual reputation and it is being harmed by falsehoods that तो someone दैट is इज saying. कवर्ड ना बॉस. Now it is, अपना defamation law तो is very bad. तो सीधे 100 करोड़ का मुकदमा अहमदाबाद में होगा है ना मेरे पे है ना. अच्छा, और already. ये या उससे पहले मतलब जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो वो आसनसोल से हुआ करते थे. हाँ. तो अभी क्या है कि अभी वो अहमदाबाद से होता है. नहीं, but my point is that restriction wise, so that is one of which is like a good defamation law, कि अगर किसी का reputation actually harm हुआ है और वो quantifiably harm हुआ है, तो therefore like the authorities should intervene. The second is, I think, a form of sedition, but not exactly sedition, armed revolutions. So if you are someone who is actually leading an insurrection against the system and the government, जैसे ब्राज़ील में हुआ, बोल्सोनारो के ट्रूप्स ने जो किया, या फिर ट्रम्प के लोगों ने जो किया, that shouldn't come under free speech either. But that's not No, free speech. that no. was not free speech. Yeah, like if they're saying ki we should do this, that should be allowed. But if they're doing it, actually, that should not be But allowed, right? so for example, if like a Trump is actually going in public and he knows his followers would end up doing an act of violence if he says it and if he tells them to, and they actually go do it,
So should Trump be held responsible for it? वो इंसाइटमेंट माना जाएगा ना. Incitement, yeah. हाँ, So तो that is a reasonable restriction then. नहीं तो वो आप फ्री स्पीच पे क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? Correct, अमेरिका में exactly. फ्री स्पीच तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना. नहीं है. हाँ, लेकिन ट्रम्प के ऊपर तो केस चल रहा है ना. चल रहा है. हाँ. लाइक यू आर सेइंग कि अगर उन्होंने बोला होता, ट्रम्प बोलता कि ही इज इंसाइटिंग पीपल टू डू दिस, बट इफ पीपल डिड नॉट शो अप, do you think he still should have been like No, then no. So Right? the But action you have a problem with. So no? the action, no, but the action was followed by something that was said. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना. कोर्ट. Exactly. Yes. I mean वही तो बाबरी के केस में भी तो वही एक इशू हुआ था कि एक्चुअली इंसाइटमेंट था वहाँ पे या फिर कोई ऑर्डर दिया गया था. वो that is again court said no, other people say yes, so that's a different sort of a territory to get into. But my point being that I don't think the free speech should be absolute. I feel like there are some restrictions that should be there. देखिए वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आप लॉ के थ्रू नहीं ला सकते, क्योंकि फिर वही इस तरह का होगा कि आप बहुत वेग उसमें लेके आएंगे. इंटरप्रिटेशन पे है ना. बात फिर वो आती है. इंटरप्रिटेशन पे आप छोड़ देंगे. फिर कुल मिला के क्या है कि आप जैसे देखिए लोग कहते हैं कि या जो कहा जाता है कि 1947 के 50 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद लॉ की नज़र में हर आदमी बराबर है. ठीक है, ये बात सुनने में अच्छी लगती है, सच भी है काफ़ी हद तक. लेकिन एक आदमी राम जेठमलानी को हायर कर सकता है, दूसरे आदमी के पास वो सोर्सेज नहीं है जो राम जेठमलानी को हायर करे. ठीक है, तो कैसे वो जब कोर्ट में दोनों लोग पहुंचेंगे, दोनों के वकील पहुंचेंगे, तो राम जेठमलानी को देख के तो जज खड़ा हो जाएगा ना यार कि ये तो मुझसे ज़्यादा कानून जानता है. एंड वी हैव सीन केसेस जहाँ पे राम जेठमलानी इस तरह की बातें कही है ना. तो राम जेठमलानी, आई एम जस्ट टेकिंग वन नेम. ठीक है, जस्ट क्योंकि वो लीजेंड. तो वो हम इसलिए उस नाम को ले रहे हैं. इसलिए नहीं कि मतलब मैं राम जेठमलानी की बात कर रहा हूँ. अब जैसे नए राम जेठमलानी जो हैं वो कौन है आप सब जानते हैं, जिन्होंने सलमान खान का केस पुटअप किया था. ठीक है, तो ये इन लोगों का काम है. जैसे एक बार आई वॉज डूइंग वन कार्टून जिसमें मैं राम जेठमलानी के खिलाफ कुछ कार्टून बना रहा था. My editor was an old guy in the sense कि he is from old school. तो वो उसने देखा और उसने कहा देखो यार ठीक है लेकिन ये कार्टून होना नहीं चाहिए. तो मैंने उससे पूछा क्यों. तो अच्छा, आई एम डेड अगेंस्ट कि कोई कार्टून सेंसर करे. राइट. बहुत मतलब ठीक है. बिकॉज़ आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा. लेकिन यार पहले इतनी मेहनत कर चुका हूं मैं. नहीं वो अब वापस एड. नहीं वो वजह नहीं है. वजह है कि वो सेंसरशिप मुझसे बर्दाश्त नहीं है. हाँ. ठीक है, तो अदरवाइज तो आप लाइफ में बहुत भाई तो आपको कार्टून बनाने की जरूरत ही क्या है. अगर आपको सेंसरशिप से इतना प्यार है तो फिर ठीक है, आप आराम से रहिए घर पे. क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत तो है नहीं भाई. आपको तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो नहीं रही है. करेक्ट है ना. तो उसने कहा देखो यार डिफेंस लॉयर का काम है डिफेंस करना. ठीक है, तो आप उसके लिए उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकते. राइट. ठीक है, तो उसका ये पॉइंट था. लेकिन दैट कार्टून वॉज पब्लिश्ड. ओके. ठीक है, उसने कार्टून नहीं रोका, है ना. तो लेकिन उसका ये पॉइंट था कि भाई डिफेंस लॉयर का काम है डिफेंस करना. तो आप तो देखिए वो मुझसे ज़्यादा लिबरल था कहना चाहिए. ठीक है, उसको ये लगता है कि भाई देखिए उनका काम है, वो अपने बंदे को डिफेंड करेंगे ही करेंगे. है ना. तो आप उसके लिए उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकते. आपको कुछ वैलिड आर्गूमेंट है. तो ये उनका पॉइंट था. मुझे लगता था कि नहीं यार वो जो कुछ मतलब है क्या कि हम सब कहीं ना कहीं थोड़े नेशनलिस्ट हैं. है ना. थोड़े मतलब थोड़ा सब कुछ है. क्योंकि जैसे नहीं इंडिया जो है बहुत डाइवर्स किस्म का कंट्री है, तो हम लोग भी वो डाइवर्सिटी अपने अंदर लेके चलते हैं. है ना. शायद मैं उतना लिबरल नहीं था मुझे उस टाइम. और टाइम के साथ भी जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जब आप उनके साथ काम करते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आप बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए चीज़ें करते हैं. है ना. तो लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है कि देखिए सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, फिल्मों में भी नहीं होनी चाहिए. अग्रीड. ठीक है. और ये भी फ्री स्पीच कंप्लीट होनी चाहिए, टोटल होनी चाहिए. इवन ट्रॉल्स को भी होनी चाहिए. ट्रोल्स को फ्री. So that is actually an interesting point, right? कि
कैंसिल कल्चर, लाइक लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट इन द एंड, बिकॉज अभी जो ट्विटर पे चल रहा है स्पेशली इलॉन मस्क का जो मामला है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर टेक ओवर क्यों किया, बिकॉज ही इज़ लाइक अ बिलीवर ऑफ एब्सोल्यूट फ्री स्पीच एंड ही बिलीव्स दैट ट्विटर वाज डूइंग लाइक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसरशिप इन फेवर ऑफ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स को सेंसर कर रहा था एंड वट एवर, एंड ही इज़ डेड अगेंस्ट द कल्चर वॉर which is the woke culture या फिर the cancel culture or whatever you want to call it. Social boycotts, are they a form of violation of free speech and censorship? What do you think? Social boycotts in the sense like किसी ने कुछ बोल दिया and you know there's like a giant amount of people who cancel this person. देखिए सोशल बॉयकॉट भी फिर कुल मिला के है कि फिर वो कहाँ रुकेगा. देखिए आपको लगता है किसी मामले में वो सही चीज़ है, जैसे किसी आदमी ने बुरा किया, आपने कहा कि कल से कोई इससे बात नहीं करेगा इसके, है ना, लेकिन फिर वो चीज़ ये हो जाएगी कि साहब इसने फला जाति में शादी कर ली, इसका सोशल बाइकआउट करो. फिर वो घूम फिर के इस पे आ जाएगा कि इसने फला फिल्म बना दी, अब इसका बाइकआउट करो, फिल्म का बाइकआउट करो. तो वो कहीं रुकने वाला नहीं है. राइट. तो आपको इस तरह की चीज़ें शुरू नहीं करनी चाहिए, है ना. आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका सिस्टम इतना मैच्योर हो, है ना, कि वो लोगों की इंडिविजुअलिटी की का ख्याल रखते हुए उनको डील करे, ट्रीट करे. ठीक है. जैसे अभी आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही ना कि आई एम सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट इट, पर वो जो उससे वो बात मुझे मतलब इलॉन मस्क के बारे में नहीं उससे काफ़ी पहले. ओके. तो वो उसमें जो उसका मुझे जो उससे ध्यान आया कि जो आम हिंदुस्तानी है वो दिल्ली मुंबई वाला हिंदुस्तानी आम हिंदुस्तानी नहीं है. करेक्ट. ठीक है. आप जाके देखें उसकी लाइफ दिन शुरू होने से रात ढलने तक उसको 1000 कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और जो उसकी सेल्फ इस्टीम है वो हमेशा, हाँ यू सेड अबाउट दिस थिंग कि अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पे होना चाहिए कि अगर आपकी जो रेपुटेशन है उसको, तो वो जो रेपुटेशन है वो हिंदुस्तानी आदमी की तो है नहीं. राइट. तो वहाँ तो माइट इज राइट है. राइट. है ना. तो भाई जिस आदमी की पूरी लाइफ इस तरीके से चल रही है, करेक्ट, उसको क्या फर्क पड़ता है फ्री स्पीच से, रेपुटेशन से. आप इंडियंस को अगर देखें, जनरल टिपिकल आप देखें लोगों को, तो क्या है वो कभी भी आपसे आपके मुंह पे रेयरली कभी ऐसी कोई बात कहेंगे जिससे आपको दुख हो. दैट्स वेरी ट्रू. है ना. अगर उनको नो भी कहना है, मैंने एक कार्टून किया था काफ़ी पहले था कि पहले एक ने प्री पोल सर्वे किया, एक सेम बंदा है चारों फ्रेम में, उससे उसने पूछा whom आर यू गोइंग टू वोट फॉर, तो वी सेड ए, एंड देन वो जब जिस दिन वोट करने गया उससे पहले उसने पूछा फिर से कि, तो ही सेड बी. मतलब दूसरा है ना. फिर वो एग्जिट पोल जब से निकला तो उसने कहा सी, एंड फाइनली इट कम्स आउट द डी हैज वन. तो वो सच बोल ही नहीं रहा है ना. तो वो सर्वे एजेंसीज करती होंगी कुछ, पर जो बेसिकली एक जैसे शीला शुक्ल का एक उपन्यास है राग दरबारी, तो उसमें है क्या कि लोग कहते हैं कि अच्छा भैया वोट हम ही को देना, तो जो आदमी घास काट रहा है और तो कहते हैं तुम ही ले जाना वोट, हमें कौन सा वोट का चार्ट डालना. ठीक है. Right. तो उससे जितने आदमी मिलते हैं और पूछते हैं कि वोट के लिए, वो सबको प्रॉमिस कर देता है कि वोट तुम ही देंगे. Sure. तो वो आपका दिल दुखाने वाली कोई बात हिंदुस्तानी लोग जनरली नहीं कहते, वो कहते ही नहीं है ना. तो वो जो आप उसको हिपोक्रेसी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ठीक है, पर हम लोगों का इस तरह का है कल्चर. No, that's a very fair point. I mean, like, obviously reputation is a very elitist Of thing course, also. yeah. I mean, like, reputation कब बनता है दिल्ली मुंबई वालों के, बिजनेसमैन के, या फिर whatever तो भाई public figures का बनता है. आम आदमी की रेपुटेशन नहीं है. Exactly. वहाँ पे कैसे आप डिफेमेशन लॉ लगाओगे? That's a तो question. आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो देश का सिटीजन है वो प्रोटेक्टेड रहे. Sure. है ना. Agreed. वो प्रोटेक्टेड रहे. अगर उसने कुछ कह दिया है तो आप नहीं उसके बच्चों के सामने उसको मारने लगो, जिस तरह की वीडियो क्लिप्स हमने देखी, है ना. आज भी अगर एक पुलिस का सबसे छोटा कांस्टेबल भी जाके किसी के घर में बैठ जाता है, उसके घर वालों को ऊपर से नीचे तक पसीने आ जाते हैं. That's true. कि वो क्यों आया है. Yeah, that's very true. है ना. सिंपल सम्मन के लिए कोई अगर आ जाए कि कोर्ट से सम्मन है,
आदमी की तबीयत खराब हो जाती है। That's very true. तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि आपको हैरेस किया जा सके। ठीक है, आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं अपनी एक कजिन सिस्टर को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था। ठीक है, अपने घर से उसको लेके जा रहा था, तो बहुत कायदे से, मेरे पास लाइसेंस था, सब कुछ था, तो बहुत कायदे से गाड़ी चलाते हुए, वो 2 व्हीलर थी जिसको मोपेड कहते थे उस तक। और एक आदमी ऐसे ही उधर से कोई आ रहा होगा और शायद उसने मुझसे इशारा भी कुछ किया। तो जनरली क्या होता है कि छोटे शहरों में अगर कोई लड़की साथ है तो आप भी थोड़ा कॉशियस रहते हो और इस तरह की इशारेबाजी को आप थोड़ा दरकिनार कर देते हो। आपको लगता है कि मतलब इसमें अभी कुछ, और वो सड़क भी काफ़ी सुनसान थी, मैं अकेले था, मैं धीरे से गाड़ी चलाता हुआ निकल गया। द गाय टुक अ यू टर्न, स्टॉप मी आगे थोड़ा जाके, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग विद मी कि मैंने इशारा किया तुम रुके क्यों नहीं। तो मैंने उससे पूछा भाई कि आप कौन, क्यों रुकना चाहिए। तो उसने कहा मैं पुलिस में हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा तो पुलिस में हो तो कोई भी यार, तुम तो वर्दी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम ऐसे इशारा करोगे और कोई किसी को भी रुक जाओगे। एंड आई वाज लाइक 17-18 मेरे ख्याल से रहा हूँ। तो उस टाइम होता है ना कि सिस्टम से फाइट कर सकते हैं। देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। हाँ, और उस चक्कर में क्या हुआ, वहाँ 4-5 लोग एंड देन ही सेड कि मैं तुम्हें गोली मार देता तो मुझे लगा यार कि क्या आदमी है। मैंने कहा तुम किसी को रोकोगे, रुकेगे नहीं, तुम उसको गोली मार दोगे। हाँ, है ना। तो इससे 2 चीजें मैं बता रहा हूँ, इस कहानी से 2 चीजें। गोली मारने से रुक तो जाएगा वो। तो दैट हैपेंड लाइक लॉन्ग अगो, ऑफ कोर्स। ठीक है, बट रिसेंटली यूपी में एक एप्पल का एम्प्लॉय आ रहा था, उसको एक पुलिस वाले ने गोली मार दी रात में और वो मर गया। ठीक है, एंड द अदर थिंग, वन पॉइंट वाज दिस एंड द अदर पॉइंट वाज कि ये जो बंदा था, थोड़े दिनों बाद मैंने अखबार में खबर पकड़ी। अच्छा, चूंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो फिर लोगों ने कहा जाने दो, बहन साथ में है, ये है, तुम क्या कर रहे हो। तो हम लोग निकल गए वहाँ से। एंड वही सिस्टर घर जाके कहने लगी यार ये तो जब लड़का है, ये तो पुलिस वाले से लड़ गया, ये कर रहा था। क्लासिक। तो मैंने कहा अरे वो अजीब, ऐसे आप किसी को कैसे रोक सकते हो, है ना भाई। आप मुझसे कहो आप गलत चला रहे थे, ठीक है, या आप इस तरह की, जैसे एक बार अभी थोड़े दिन पहले मुझे रेड लाइट पे, मैंने रेड लाइट जंप कर दी क्योंकि मैंने देखी नहीं थी। एक पुलिस वाले ने रोका, मैं रुका, उसने मेरा लाइसेंस देखा, तो तब तक मैंने हेलमेट उतारा। एंड इट वाज सेम डे व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली। ओके, जब मैं अपने घर के सामने पहुंच गया तो वहाँ ये ठीक है। तो उसने मुझसे कहा कि अरे यार आप तो इतने, मुझे लगा कोई लड़का होगा यार, रेड लाइट कैसे जंप कर दी। तो मैंने कहा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, बताइए क्या कर सकते हैं। तो ही सेड कि नहीं चलिए आपको वार्निंग देके जाने देते हैं। कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ से आ रहा। बोला अरे इतना लंबा। देन ही स्टार्टेड आस्किंग अबाउट दिस थिंग। तो वो फिर ही उस बंदे के बारे में जो मैं बात बता रहा था कि मैंने थोड़े दिनों बाद अखबार में खबर पड़ी कि ही वाज अ क्रुक। ओके, तो वो ये करके, बिकॉज वो सुनसान रास्ता है, कोई लड़का लड़की को लेके जा रहा है, तो आपको लगेगा कि दोनों इस तरह का मामला है, तो आप इन लोगों से कुछ पैसे वसूल सकते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ही वाज ट्राइंग टू डू दैट, राइट। तो अगर आप, दिक्कत ये है कि अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता हैं और अगर आप उनके लिए खड़े नहीं होगे तो कोई भी आदमी इस तरह से कभी भी आपको बेवकूफ बनाएगा। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड लाइक एग्जांपल, बिकॉज मेरे साथ ही वेस्ट बंगाल में एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ कि लाइक मी एंड मनीषा वर गोइंग ऑन अ रिपोर्टिंग थिंग एंड दिस रैंडम गाय बेसिकली like pretended like he bumped in front of us and then extort करने की कोशिश कर रहा है हमको। एंड लेकिन नहीं लगा, गाड़ी नहीं लगा, लेकिन अरे मेरी गाड़ी खराब कर दी, डेंट लग गया वगैरह कुछ, तो भी वो चालू था। एंड लाइक कि नाउ आई विल बेसिकली रिपोर्ट यू टू द पुलिस। तो लाइक कर ले। तो while going, he was following us, and then suddenly this guy in a very badly done uniform with a walkie-talkie just ruko, and then he stops, and then he's like, "Acha, what did you do? You know, like you did this and you whatever." And I was like, "You tell us your name."
एंड इज लाइक नाम क्यों पता है? बोले कि हम जर्नलिस्ट है, हम लाइक यू नो विल कॉल आवर पीपल, यू कॉल योर पीपल एंड देन विल सॉर्ट दिस आउट. तो देन इमीडिएटली इज लाइक नहीं ठीक है ऐसा आगे से मत करना, आप आगे चले जाओ टाइप्स. एंड सो दैट इज व्हेन लाइक आगे जाके लाइक पीपल टोल्ड अस कि दिस इज लाइक अ बिग स्कैम दैट इज गोइंग ऑन यहाँ पे. कि तो क्या है वो यही है Exactly. ना, आपने अथॉरिटी दी रखी है. Right. और वही है ना कि आप किसी को भी पकड़ के बंद कर दो, Yeah. आपको किसी को भी मारना है तो गाड़ी उलट जाएगी. Yeah. है ना. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको लोगों को लग के देख के बहुत मज़ा आता है कि साहब बुलडोजर चल गया. आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि जब तक चल रहा था तब तक ठीक था, नोएडा की सोसाइटी में चलने लगा लोगों को दिक्कत हो गई. So in a way that what I think I'll conclude this podcast also. I think we are a little over time, but in a way what you're trying to say is that जब तक हमको हमारे rights पता नहीं होंगे and we don't fight for our rights, we won't be able to live as citizens, and B also we will get scammed. Right, I mean, like, essentially, but also because of reasonable restrictions, इतने सारे interpretations पड़े हुए हैं वहाँ पे, तो that is what gives the authority to sort of screw you over. और ये इंटरेस्टिंग है कि मतलब ये मेरे ख्याल से 30 साल में मैंने पहली कमेंट ऐसी देखी है जिसने ये कहा कि राइट्स तो ठीक है, राइट छोड़ो. है ना. आप क्या कर सकते हो, ड्यूटीज के बारे में बात करो. हाँ. है ना. तो ये बताता है कि वो क्या चाहते हैं. राइट. है ना. तो ये जो है कि आपको थोड़ा लोगों को ये समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है आपसे राइट तो ठीक है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, आप थोड़ा ड्यूटीज की बात करो. बट डू यू थिंक लाइक ऐसे इफ यू हैव टू रियली डम्ब इट डाउन कि फ्री स्पीच ऐसे बाइनरी होना चाहिए कि इट शुड बी लाइक अ येस और नो, लाइक देयर शुड बी नो ग्रे एरिया, देयर लाइक सब कुछ अलाउड होना चाहिए, या फिर इवेंचुअली कुछ भी अलाउड नहीं होगा? इज इट दैट काइंड ऑफ थिंग आपके लिए? नहीं, देखिए बात क्या है कि आप जैसे ये कहते हो फ्री स्पीच, राइट, ठीक है, तो फ्री स्पीच का मतलब भी ये है कि आप सबको हर मतलब कम से कम एज ए कॉन्स्टिट्यूशन आप ये गारंटी कर रहे हो. देखिए मैंने पहले ही कहा कि जब आप बोलते हो आप कभी भी वो फ्री स्पीच नहीं होती है. ऑफ कोर्स. हाँ, ठीक है, ऑलरेडी प्री सेंसर्ड आता है. जैसे मैंने बहुत लर्नेड, बहुत पॉपुलर, जो बिल्कुल जिनकी आवाज़ बिल्कुल मखमल जैसी है, उनसे मेरी बात हो रही थी. तो मैंने कहा कि कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं पॉडकास्ट शुरू कर दूं, तो क्या लगता है कि मेरी आवाज़ ऐसी है? बोले नहीं, आपकी आवाज़ अच्छी है. तो क्या मुझे पता नहीं है मेरी आवाज़ कैसी है ना. पर वो क्या है कि वो ये नहीं कह सकते कि आपकी आवाज़ इस लाइक नहीं है. देयर आर सर्टेन पीपल हु कैन डू दिस एंड से दिस. राइट. है ना. जैसे आर के लक्ष्मण के पास एक यंग बच्चा आया. आर के लक्ष्मण वाज अ फेमस कार्टूनिस्ट. तो वो उनको उसने दिखाया, उसने कहा तुम कभी कार्टूनिस्ट नहीं बन पाओगे, छोड़ दो ये. लेटर पीपल सेड कि आपने यार क्या बात है. उसने कहा यार मैंने उसका टाइम बचाया. ठीक है, मैंने उसका टाइम बचाया क्योंकि अगर वो ये करता रहता तो ये वो कर नहीं पाता. अभी क्या ये छोड़ के वो कुछ कायदे काम करेगा तो वो कुछ हो जाएगा. तो ठीक है, तो आप इस घटना को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, है ना. आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि उसने उसके साथ सही किया, गलत किया. लेकिन जो कहने की बात है वो ये है कि हम लोगों में बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो उनको उस समय जो ठीक लग रहा है वो कहेंगे. है ना. जो सब मन की बात है वो वाकई मन की बात कहेंगे. और दूसरी बात है उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग उनसे भी कम मिलेंगे. राइट. है ना. मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्ती खराब हो जाएगी. Right. मतलब किसी ने कोई इस तरह की बात कह दी, जैसे आपने ये कहा कि यार अपनी कार दे दो, उन्होंने कहा नहीं यार कार तो मैं नहीं दे पाऊंगा. तो हो सकता है अगले दिन से आप उससे बात करना बंद कर दो. भाई आपने जब कार मांगी थी तो उसमें दोनों ऑप्शन खुले हुए थे ना, कि वो हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है. तो अगर उसने ना कह दिया तो आप उसको फिर इस तरह से भी तो आप ऑफेंड क्यों हो गए. हाँ, तो इंडिया में क्या है, हाँ इंडिया में क्या है कि वो ऑफेंड भी हो. तो जो आप कह रहे हो ना कि फ्री स्पीच का जो मामला है, फ्री स्पीच का मामला कंप्लीट ही होना चाहिए. क्योंकि आप उसमें जैसे ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहोगे वैसे ही वो जो होगा वो इतना ज़्यादा वेग है कि उसको कौन पावर में होगा और उसके लिए उसके हिसाब से क्या राइट है ना, उसके हिसाब से क्या सही है, वो कौन इंटरप्रेट करेगा. भाई देखिए मैं आपको छोटा सा सिंपल एग्जांपल देता हूँ. लोग तमाम सारे अपराधों में सालों से बंद किए गए, किसी को पता नहीं है कि किस तरह का अपराध है. ठीक है, 13 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 चीफ जस्टिस बदल गया, सडनली एक नया चीफ जस्टिस आया और सबको बेल मिलने लगी. तो ये यार जब लॉ की ये हालत है जिसपे इतनी किताबें और इतने जजमेंट और सब कुछ लिखा गया है कि भाई वो इंटरप्रिटेशन ही चेंज हो गया क्या. भाई जिसको आप पहले इंटरप्रेट कर रहे थे कि नहीं यार इस आदमी को तो हम बेल नहीं दे सकते, सडनली उसको बेल मिलने लगी क्योंकि जज चेंज हो गया.
नहीं, क्यों जज नहीं चेंज हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस केवल चेंज हुआ। चीफ जस्टिस चेंज हो गया। हाँ, तो चीफ जस्टिस ने तो कोई जाके नहीं हर केस देखा हाँ, होगा। हाँ, हाँ। तो है क्या कि जिसके लिए कहा जाता है ना, जैसे भ्रष्टाचार की जो गंगा है वो ऊपर से बहती है ना, वैसे ही इस तरह की भी चीज़ें जो है ना, कि आप कितने लिबरल होगे, आप कैसे होगे, आप सच बोलने वाले होगे, आप झूठ को वो करने वाले होगे, ये सब बहुत ऊपर से डिसाइड होता है। जिस तरह के लीडर्स आप हैं, और लीडर्स कैसे होते हैं, लीडर्स या सोसाइटी कैसी होती है, जैसे आप होते हैं तब आप ऐसे लोगों को चुन के भेजते हो, है ना, आप ऐसे लोगों को डिजर्व कर रहे हो ना, तो ऐसे लोग आपको रूल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह का रिलेशनशिप है। That's actually a good way to end this here. I think the conclusion that I draw from this, I'm actually now rethinking my opinion about free speech a little bit, about restrictions and ये, because you're right कि अगर आप एक छोटा सा भी अगर आप reasonable restriction कोई भी authority को दे दोगे, तो वो authority कैसे interpret करके उसको कैसे implement करेगी, that's next level. I mean, like, and the implementation of it on the ground level is also next level. तो वो हमको वो तो कोई control कर नहीं सकते, so better not have it at all, because that would always lead to exploitation of the rights of someone. Where can people follow you and and if you have anything to promote? I have nothing to promote. Just that people should read cartoons more carefully, and they should read more and more cartoons. Yeah. ठीक है, that is the only thing I want to say. Yeah. And where can people follow you? On Twitter, I'm as Manjul Toons. Yes. I think on all social media platforms I'm as Manjul Toons. Manjul Toons, yes. So follow him there. हाँ, you like anybody can follow me there. Yes. If you want to abuse me, you can go on Facebook. Right. Because you don't look at it. because Twitter पे चूंकि मैं खुद हैंडल करता हूँ, तो मैं तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ. If anybody is trying to get like be personal with me, तो वो मैंने, और even if he is trying to abuse Meghnad and it appears on my TL, तो I block the person. Oh, very nice of you. So मतलब वो बिल्कुल सीधी सी बात है. मुझे अपनी TL पे. What if somebody calls Meghnad a legend? Are you like, उसने क्या किया अभी तक ऐसा? उसने थोड़ी ना कुछ किया. That's a good question. पर मेघनाद ने कुछ किया है जो legendary work है. I'm telling you, and if you have not watched it, you should watch it. उसने 2 सीरीज बनाई हैं. एक उसने कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक सीरीज बनाई है. उसके 2 पार्ट हैं बेसिकली, 1 and 2. You must watch it. वो बेसिकली, हाँ, वो बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बेसिक समझ देती है, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली वही बात है कि सिटीजन्स को अपने राइट्स के बारे में. Interestingly enough, I have opened the script of Constitution season 2 episode 1 for this episode as well, and I was reading out of it. But that is great. Shad, where can people follow Instagram you? At Shad Shafi. That's it. It's very simple. Yeah. Okay. Thank you so much, guys. Thank you for doing this. Thank you, Manjul, for coming all the way from not Navi Mumbai but somewhere else and doing this with us. And thank you, Shad. Hey, thank you. If you are watching this, you're watching this on the All About Now feed. This is our new YouTube channel and audio feed where you get ELI 10 and Page 10, and soon there will be more shows coming on this very feed. So please do subscribe, please do like this stream, it really helps, and go follow Manjul, go follow Shad, and come follow me as well. Bye bye.